Good morning, student. In previous lecture we learned about what is hardware like CPU, memory and input and output. They are most commonly. Then we learn about computer storage. Today we are going to learn about the software. What are the software? So, hardware are physical and tangible part of computer that can be touch, feel. Along with they perform some physical task like monitor display image physically, keyboard take input physically. So, there are lot of like CPU perform some operation by calculating something. So, hardware are physical component and they perform some specific physical task that can be seen by us. But hardware perform the task and the task is decided by whom? Suppose in keyboard we press 2 plus 3, then who will be decide? They will be going to print, they will going to calculate, etc. So, hardware perform the task, but software are those intangible parts of computer which run the hardware and perform a specific task. मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ. हमारे पास जो बेसिक फ़ोन होते हैं, जो बेसिक मोबाइल फ़ोन है नोकिया 1100 समथिंग, तो उसका एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगा. आप एक बार ध्यान से सुनिएगा. जो बेसिक फ़ोन्स होते हैं उसमें एक बटन होता है रेड कलर का, वो एक हार्डवेयर है ना, कीबोर्ड. जब कभी भी हम लोग रेड बटन को प्रेस करते हैं तो कभी तो ये कॉल कट करता है, कभी ये पावर को स्विच ऑफ करता है, कभी ये एप्लीकेशन को बंद करता है. इसका मतलब है कि एक ही बटन 3 काम कर रहा है. नहीं, वो बटन कोई काम नहीं कर रहा है. एक्चुअली में वो बटन सिर्फ प्रेस हो रहा है. किसी बटन के दबने पर या उस बटन के दबने पर क्या परफॉर्म होगा वो सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है. सॉफ्टवेयर ने इन्फॉर्म किया मोबाइल को कि अभी कोई एप्लीकेशन चल रही है, देन जो उसकी वर्किंग होगी रेड बटन की वो होगा सॉफ्टवेयर को क्लोज करना. अगर अंदर जो सॉफ्टवेयर उसने इन्फॉर्म किया कि अभी कोई कॉलिंग चल रही है तो उस बटन की वर्किंग हो जाएगी कॉल को कट करना. अगर सॉफ्टवेयर ये कंफर्म करता है कि अंदर कुछ काम नहीं चल रहा है, ना तो कोई कॉलिंग हो रही है ना कोई एप्लीकेशन ओपन है, तो उस बटन का काम हो जाएगा, उस बटन का ये वर्क हो जाएगा कि इट विल क्लोज या शट डाउन या switch off the phone. So, the software will decide what to perform by hardware. So, software are just a soul. Okay. What is the software actually? Okay. So, software control the hardware. How? Software just a set of computer program. Computer program means computer developer write some codes. These codes are called as instructions, and these instructions given to the hardware, and according to these instruction hardware can perform. So, software are set of program that govern the hardware or perform a task. In our computer, software perform two kinds of task. First one, to perform a specific task like music player, Adobe Photoshop, PDF reader. They perform just a specific task like browser, etc. And there are some software that govern the hardware like operating system. So, according to this definition, we can divide the software into two categories. First one is system software and another is application software. So, we look into the detail what these software are perform tasks or how they are categorized. Now, system software are those computer program which govern computer hardware and internal computer operations. These kinds of software
सिंपली से दे ये लोग ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है दे परफॉर्म सम टास्क टू कंट्रोल हार्डवेयर. System software further divided into two major part according to our syllabus. First one is operating system and another is language processor. There are some another categories of system software, but they are not mentioned in our syllabus. So first we discuss about the operating system. Later we go for language processor understanding. Now, what is operating system? So, each and every computer in the world must have operating system, which is a system software. ये करता क्या है प्रोसेस सिस्टम? तो मैं आपको बताता हूँ ये दुनिया के हर कंप्यूटर में अवेलेबल है और ये करेगा क्या. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है दैट कंट्रोल ईच एंड एवरी ऑपरेशन इन कंप्यूटर. हमारे कंप्यूटर में होने वाले सारे ऑपरेशंस को ऑपरेटिंग सिस्टम ही गवर्न करता है, चलाता है, कंट्रोल करता है. जहां जहां हार्डवेयर है दुनिया में उनको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर होगा. जैसे कि हमारे लैपटॉप या हमारे पीसीज में आपने सुना होगा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. कभी लाइनक्स यूज करते हैं, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है. कुछ लोग यूनिक्स यूज करते हैं, कुछ लोग मैकिनटॉश यूज़ करते हैं. एप्पल के लैपटॉप में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उनका पर्सनल है. और मोबाइल की बात करें तो मोबाइल के अंदर भी हमारे पास में सॉफ्टवेयर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एंड्रॉयड, iOS, ब्लैकबेरी OS एक्सेट्रा. अब ये जो सॉफ्टवेयर है OS ये क्या क्या काम परफॉर्म करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम द मेजर टास्क इज गवर्न द हार्डवेयर. हमारे कंप्यूटर में सारे जो हार्डवेयर है इंक्लूडिंग कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, मेमोरी एक्सेट्रा, इन सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम ही गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, उनको रन करता है. सेकंड, जो भी ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं लाइक एडिशंस, प्लेइंग म्यूजिक, प्लेइंग वीडियो, ओपन अ फाइल, राइटिंग अ फाइल एक्सेट्रा, वो सारे ऑपरेशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही सपोर्ट करता है. देन इट कंट्रोल रिसोर्सेज. हमारे कंप्यूटर में जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज कैन बी अ हार्डवेयर, कैन बी अ सॉफ्टवेयर, कैन बी अ फाइल, फोल्डर एक्सेट्रा. तो हमारे कंप्यूटर में जितने भी रिसोर्सेज हैं इंक्लूडिंग अदर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फाइल, फोल्डर, UI एक्सेट्रा, ये सभी जो है ये हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है, कंट्रोल करता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसका टास्क होता है वो है यूजर को इंटरफेस देना. यूजर इंटरफेस क्या होता है? जब हम लोग हार्डवेयर को चलाना चाहते हैं, सपोज करो वी वांट टू रन कीबोर्ड, है ना, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें इंटरफेस देता है कि हम लोग कीबोर्ड चलाएं. सपोज वी वांट टू रन मॉनिटर, तो हम लोग डायरेक्टली मॉनिटर पे कुछ भेज नहीं सकते. सो हमारा OS जो है वही काम को परफॉर्म करता है, जो भी हम लोग टास्क परफॉर्म करवाएंगे देन वही हमारे मॉनिटर को यूज करता है, वही मॉनिटर पर आउटपुट भेजता है. तो हम लोग नहीं भेजते. तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के बीच एक इंटरमीडिएटर का काम करता है. तो ये हमसे इंस्ट्रक्शन ले जाता है और वो हार्डवेयर को देता है और हार्डवेयर से कंट्रोल करवाता है. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस तरह से वर्क करेगा. Along with user interface, it can manage the memory. रैम में क्या जाएगा, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, है ना, कौन सा टास्क कब तक चलेगा, ये सब कुछ ही हमारा OS मैनेज करता है. सपोज कीजिए जब हम कोई गाना प्ले करते हैं तो गाना जब प्ले किया, हमने इंस्ट्रक्शन दिया, तो OS हमसे इंस्ट्रक्शन लेगा. देन वो इंस्ट्रक्शन म्यूजिक प्लेयर को देगा, म्यूजिक प्लेयर गाने को ऑन करेगा, ऑन करने के बाद वो गाना कब तक चलेगा, फिर वो स्टॉप हो जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है. तो ये सारा कंट्रोल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है. मार्केट में बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको बताया कि विंडोज अवेलेबल है, लाइनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, डॉस, iOS एक्सेट्रा. तो जहाँ जहाँ कंप्यूटर है वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर होता है. ये एक मैंडेटरी सॉफ्टवेयर है, कंपल्सरी सॉफ्टवेयर है. ओके, नाउ
अब हम लोग बात करेंगे अनदर सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जिसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। अब ये लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर हम लोग उन सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो दूसरे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जिनको आम भाषा में हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसा आपने सुना होगा कि सी, सीपीपी, जावा, पाइथन, रूबी, एक्सेट्रा, दे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। These languages are used to make a software. There are some other languages which are not used to make a software like HTML, PHP. इनमें सॉफ्टवेयर नहीं बनते, इनमें वेबसाइट बनती है, और वेबसाइट इज नॉट अ सॉफ्टवेयर. वेबसाइट आर जस्ट अ फाइल विच कंटेनिंग सम इंफॉर्मेशन. सॉफ्टवेयर आर समथिंग दैट परफॉर्म सम टास्क. तो वेबसाइट कुछ काम नहीं करती, उसमें से इंफॉर्मेशन सेव रहती है. तो HTML दे आर डिफरेंट थिंग, दे आर नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. बट C, CVP, Python, Java, they are programming languages, and they are used to make another software for our personal computer like laptop, desktop, mobile, etc. So language processor जो है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है. अब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग जैसे हमारे सिलेबस में पाइथन है, तो पाइथन क्या है? एक लैंग्वेज प्रोसेसर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है पाइथन, है ना, जो पाइथन का हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, जहाँ हम लोग पाइथन का कोड लिखेंगे. तो पाइथन जो है वो एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जिसको यूज़ करते हुए हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, स्मॉल अभी के लिए. हाँ, इंडस्ट्रीज को यूज़ करती हैं टू क्रिएट अ लार्ज स्केल ऑफ सॉफ्टवेयर. बट हम अपने स्कूल के अंदर पाइथन से यूज़ कर जो हमारे प्रोग्राम्स बनाएंगे जो कि सॉफ्टवेयर ही होते हैं, तो हम उस पर काम करेंगे. अब ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर है, जैसे मान लीजिए कि पाइथन का जो प्रोसेसर है ना, ये करते क्या है? सी का प्रोसेसर या जो लैंग्वेज ये काम कैसे करती है? तो ये जितने भी प्रोसेसर है दे हमें वो हमें अलाउ करते हैं कि हम लोग कंप्यूटर का प्रोग्राम लिख सकें किसी एक भाषा में. जैसे कि सी का जो प्रोसेसर है, जिसको हम लोग सी कंपाइलर कहते हैं, है ना, वो हमें अलाउ करता है कि आप लोग सी के कोड लिखें, सी में प्रोग्राम लिखें, और वो उसको कन्वर्ट करेगा एक कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में. सिमिलरली जब हम लोग बात करते हैं जावा की, तो जावा का जो प्रोसेसर है वो हमें अलाउ करता है कि हम लोग जावा के अंदर कोई कोड लिखें, देन वो कन्वर्ट करेगा हमारे कोड को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, जिसको हम लोग मशीन कोड कहते हैं, देन कंप्यूटर उसको चलाएगा. तो प्रोसेसर अलाउ भी करता है लिखने के लिए, साथ में उसको कन्वर्ट भी करता है. तो ये किसको अलाउ करता है? ये जो अलाउ करता है उसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेजेस लाइक सी, सीवीपी, जावा, पाइथन, एक्सेट्रा. क्लियर? तो ये जो हाई लेवल ये जो हमने सी में या पाइथन में जो कोड लिखा है लैंग्वेज प्रोसेसर पर, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो कोड लिखा है, उसको हम लोग कहते हैं सोर्स कोड, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होगा. अब हाई लेवल लैंग्वेज कुछ भी ले सकते हैं. तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड होता है उसको हम लोग कहते हैं सोर्स कोड. तो प्रोसेसर क्या करता है? कोई भी भाषा का जो सोर्स कोड होगा उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में. तो मशीन कोड जो है वो उस मतलब वो इस फॉर्म में होता है ताकि कंप्यूटर उसको चला सके. इसमें जनरली मशीन अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शन होते हैं लाइक 0 and 1. सपोज मैंने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा, सपोज करें ए, पाइथन में लिख रहा हूँ मैं प्रोग्राम, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3. तो दे आर यूजिंग पाइथन. पाइथन में ये इस तरह से लिखते हैं हम लोग, है ना. तो ये पाइथन का सोर्स कोड लिख रहा हूँ. और पाइथन कैसे? हाई लेवल. हाई लेवल का मतलब है कि दे आर वेरी इजी टू राइट. देन हम लोग लिखते हैं प्रिंट करना है a प्लस बी. तो हमने ये लिख दिया सपोज. तो अब ये प्रोग्राम क्या करेगा? ये एक पाइथन का प्रोग्राम है और ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसको हम लोग हाई लेवल सोर्स कोड कहते हैं. तो ये हमारा सोर्स कोड है जो पाइथन में लिखा हुआ है. अब पाइथन का प्रोसेसर क्या करेगा? इस कोड को कन्वर्ट करेगा किसमें? मशीन भाषा में. ये इसका मशीन कोड है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं. इस कोड में हम लोग मान के चलते हैं कि इसमें मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड जैसे कि 0 1 है, इस तरह से कुछ भी हो सकते हैं. वो प्रोसेसर कन्वर्ट करेगा कि इसका 0 1 क्या बनेगा, इसका 0 1 क्या बनेगा, इसका 0 1 क्या बनेगा, यस नो.
इस तरह से वो पूरा 0 1 लिख देता है। नाउ कंप्यूटर विल रन दिस कोड ओनली। तो यही लैंग्वेज प्रोसेसर की वर्किंग होती है। और हम आने वाले जो हमारे नेक्स्ट यूनिट है जिसमें हम लोग पाइथन सीखेंगे, तो पाइथन इसी तरह से वर्क करता है। पाइथन भी एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। अब ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर है ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। देखते हैं इनके क्या क्या टाइप्स हैं। तो ये इनके टाइप्स हैं। कुछ लैंग्वेज प्रोसेसर को असेंबलर कहते हैं, कुछ कंपाइलर कहते हैं, कुछ इंटरप्रेटर कहते हैं। अब तीनों में काम सबका यही है कि ये जो भी हम लोग इसमें कोड लिखते हैं ये इन सबको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं, करेक्ट है। बट फर्क थोड़ा सा ये रहेगा कि असेंबलर जो है ये असेंबली लेवल कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। डायरेक्टली हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं, ये कंप्यूटर में इंटरनली यूज किया जाता है ना हमारे प्रोसेसर के साथ में। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग इनको ओपन करते हैं और हम अपना हाई लेवल सोर्स कोड इसमें लिखते हैं, चाहे वो सी में हो, चाहे सीपीपी, चाहे पाइथन में, चाहे जावा में। तो इन दोनों का काम यही है कि हाई लेवल जो सोर्स कोड हमने लिखा है, करेक्ट, उसको वो दोनों को ही ऑब्जेक्ट कोड में बदल देगा। तो यहाँ तक तो दोनों सिमिलर हैं, पर दोनों में एक फ़र्क ये है कि अगर मान लीजिए कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा है हाई लेवल के अंदर पाइथन में जिसमें 10 लाइन है, सपोज कीजिए, है ना, पाइथन में। तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, पाइथन का कंपाइलर नहीं आता, पाइथन का इंटरप्रेटर है, तो पाइथन वो 10 लाइन को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा, यस। जबकि कंपाइलर जैसे कि सी, सीपीपी, जावा के जो कंपाइलर होते हैं, तो मान लीजिए कोई प्रोग्राम मैंने बनाया है सी के अंदर जिसमें मैंने 10 लाइन लिखी है, तो सी का जो कंपाइलर है वो एक साथ में ही वो 10 लाइनों को कन्वर्ट कर देगा। जबकि इंटरप्रेटर हाई लेवल को कन्वर्ट करता है बाइनरी में, कंपाइलर भी सेम काम करते हैं, बस ये फर्क है कंपाइलर इन सारे कोड को एक साथ रन करेगा, कंपाइल करेगा, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन वर्किंग करता है। तो यही दोनों में मेजर फर्क है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर। हालांकि दोनों ही सेम पर्पस के लिए काम आते हैं कि हाई लेवल को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। तो ये था हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। देन आवर लास्ट टॉपिक आएगा जिसका नाम है कंप्यूटर जनरेशंस। देन हमारी यूनिट फिनिश हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।